संध्या। आज 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है। एक विशेष दिन है जिसको सारे विश्व में सभी देशवासी बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ एक ही धुन में मना रहे हैं। हम भारतवासी पद्मापदम भाग्यशाली है क्योंकि सारे विश्व में योग के क्षेत्र में भारत लाइट हाउस रहा है। भारत का जो प्राचीन योग है, जो राजयोग के नाम से प्रसिद्ध है, वही राजयोग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से 1936 से विश्व को वही राजयोग सिखा रहा है और लाखों के जीवन में दिव्यता लाया है और आगे चलकर ये लाता रहेगा। आज लॉकडाउन के कारण हम सभी इस सेमिनार ऑनलाइन सुन रहे हैं और ये कोविड-19 के रिजल्ट को देखते हुए हम सभी यही महसूस करते हैं कि सभी के लिए राजयोग अति आवश्यक है। इसको देखते हुए हम आज का टॉपिक ये रखा है। आज का टॉपिक है कॉल ऑफ कोविड-19, बी होली बी राजयोगी। इस सेमिनार को शुरू करने से पहले जिस परमपिता परमात्मा की सटल डायरेक्शन से ये प्रोग्राम हो रहा है, उसी परमपिता के मधुर स्मृति में आइए हम 3 मिनट के लिए मगन हो जाएं एक सुंदर संगीत के माध्यम से और परमात्मा की ब्लेसिंग और प्रेजेंस हम सभी फील करेंगे। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा
के सहयोग से सुखमय संसार आज इस सेमिनार में डिफरेंट फील्ड से डिफरेंट स्पीकर्स आ रहे हैं। कोई पॉलिटिकल फील्ड से, कोई स्पिरिचुअल फील्ड से, कोई जूरिस्ट फील्ड से, तो कोई मेडिकल फील्ड से। नाउ आई एक्सटेंड माय hearty greetings and hearty welcome to all our eminent guest speakers as well as all our online audience। वर्तमान हमारे सामने हमारे लोकप्रिय योग प्रिय भ्राता डॉक्टर प्रदीप कुमार पानीग्राही एमएलए गोपालपुर आ रहे हैं। आज के योग दिवस के लिए अपना खुशी व्यक्त करेंगे भ्राता डॉक्टर प्रदीप कुमार पानीग्राही। Namaskar. I am immensely happy that we are celebrating Yoga Day on 21st June every year, and I am happy that Prabhu Upahar Retreat Center, Ramchandrapur, is organizing an international seminar on International Yoga Day on 21st June 2020. In this occasion, I convey my deep gratitude to the organizer, particularly the director of the center, Mala Behan, Raj Yogini Mala Behan, and local head of the center, Raj Yogini Manju Behan, with all other members conducting a e-seminar in this occasion. As we know that world is seen a great challenge through COVID-19. An entire world community is suffering and having a psychologically down and a fear among the public how to fight the COVID-19. It is a great challenge to the world leaders, scientific community, doctors, also all experts and corporate house and general public. In this occasion, the Prajapati Ishwara Vishwavidyalaya, Ramchandrapur, have taken a bold stand in organizing this international seminar through e-seminar and sending a strong message of through Raj Yoga, through Yoga, how to fight COVID-19 through Raj Yoga. As you know, Yoga is the only medium from time immemorial teaches us to fight against diseases, to fight against all miseries, all pains, all sufferings. We pray Lord Bhagavan to give strength and knowledge to fight this COVID-19. And I appeal to all of you, please practice yoga for all-round development, maintain body balance between spiritual, mental and physical. That is the utmost need of the time. As you know that most of the people out of economic condition, out of mental condition, out of other regions go for suicide, which is not in a healthy trend of a wealthy nation or healthy nations. So to counter these measures, yoga is the only medium where it gives mental strength, physical strength and spiritual strength to fight this weakness of the mind, the weakness of the spirit, the weakness of body, and build a strong immunity inside of the body to fight against the great challenges that we are facing, including COVID-19. I hope all of you should understand these challenges and do practice yoga for better future, better life, healthy life, comfort life. Thank you. बहुत बहुत थैंक्स
भ्राता डॉक्टर प्रदीप कुमार पानीग्राही जी आपके उमंग भरे वक्तव्य से सभी को योगा को जीवन में उतारने के लिए प्रेरणा मिली और सभी निश्चित रूप से इसको दैनंदिन जीवन में लाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होंगे। यही आस है। फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे सामने आ रहे हैं न्यायविद के ओर से बीके सिस्टर राजयोगिनी सरोजिनी साहू, एसटीजेम ब्रह्मपुर। Om Shanti. Wish a happy International Yoga Day. In order to overcome the competitiveness in the world and to face the future, we need to improve our overall personality. A person is regarded as sound when he is healthy both physically and mentally. There are many cures, medicines, vitamin, surgery, etc. when a person is suffering physically from diseases. But the diagnosis for the diseases in the mind cannot be done, leave alone the cure. This is because there is no proper understanding of the self, that is, who I am and what I am. Raja Yoga meditation is an everlasting cure for all mental diseases, which is taught at Brahma Kumari's center free of cost. On this occasion of International Yoga Divas, we focuses on this Raja Yoga as it includes most of the other techniques of yoga and it means the king of yogas. The practice of Raja Yoga enables to look within and to make contact with the inner truth and the inner positive qualities for which our conscience became awakened and refined. This meditation detaches the self from all the negative or wasteful thoughts and creates elevated thoughts. It explains what is Atma, who is Paramatma, what is this world drama, what are the original qualities of Atma, from where it comes, to where it is to return back, what are the duties of soul and what are the duties of the Supreme Soul. From the daily practice of this Raja Yoga, I learn how to play my role and responsibility, being impartial, neutral, as a trustee and a sakshi, without any biasness, without being influenced by any fear or favor. This meditation also develops the skill how to live a lotus-like life. That means कमल पुष्प तुल्य जीवन. भले हम संसार में रहें, लेकिन संसार मुझ में न रहे. It also teaches how to cultivate the neutrality in the face of emotions arising out of unpleasant experiences of past. This makes me feel that I am a child of Supreme Soul. The entire universe is my home. I am not an Indian, I am a soul, neither black and white, nor male or female. Neither young or old, I am a soul playing my role. Om Shanti. Thanks, Benji. Your mode of approach in sharing the practical experience is very excellent. आज का जो चीफ स्पीकर राजयोगिनी मंजू दीदी जी,
बरहमपुर सब जोन इंचार्ज, उनसे आपको परिचित कराते हैं। राजयोगिनी मंजू दीदी जी महात्यागी, महातपस्वी, वरदानी मूर्त 1960 से इस आध्यात्मिक मार्ग पर हैं और 1967 से विश्व कल्याण हेतु खुद को इस महा विश्वविद्यालय में समर्पित किया है और 1969 में वो माउंट आबू, हमारा जो ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर है, उसमें एक सीनियर राजयोग टीचर के रूप में सेवा दे रहे हैं। और माउंट आबू की ओर से विभिन्न राज्यों में जो भी मेला, कॉन्फ्रेंस आदि होते हैं, उसमें आप मेडिटेशन कोर्स कराते हैं और आप अनुभवी पुरुष है। 1986 से आप ब्रह्मपुर सब जोन इंचार्ज के रूप में गंजाम, गजपति, श्रीकाकुलम, नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट के हजारों भाई बहनों के जीवन में आप श्रेष्ठता लाए हैं और आप जैसा 100 से ज्यादा समर्पित ब्रह्मा कुमारी आप तैयार किए हैं जो आज भी विश्व को संदेश दे रहे हैं परमात्मा का। आप हमारी अलौकिक मीठी माँ भी है। आज के इस शुभ अवसर पर आप अपना वक्तव्य सभी के सामने प्रकट करेंगे। राजयोगिनी मंजू दीदी जी। ओम शांति। आज का दिन बोलो सारे विश्व के लिए, विश्व के इतिहास में भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए एक गौरव का दिन है। आज मुझे वो बात याद आती है जब हम छोटेपन में, बचपन में सुना करते थे कि भारत विश्व गुरु था। किस लिए था? यहाँ की आदर्श शिक्षा जैसे गुरुकुल, वनस्थली, तक्षशिला, नालंदा, ये सब विश्व गुरु को सिद्ध करने वाले, दर्शाने वाले ये हमारे स्थान, शिक्षण स्थान, शैक्षणिक स्थान आज भी इनकी यादगारें हैं। भले तक्षशिला आज भारत की सीमा के अंदर नहीं है, लेकिन यादगार तो है, नालंदा तो है, वनस्थली और गुरुकुल तो आज भी शिक्षा का केंद्र बन करके शिक्षा दे रहे हैं। और वहाँ से निकले हुए बच्चे कुछ ऐसी भावनाएं, कुछ ऐसे संकल्प और कुछ ऐसे कर्म जिसमें औरों के कल्याण के लिए, औरों को सुख देने के लिए, औरों को सहयोग देने के लिए ज़्यादा निहित होती हैं। आज फिर सारे विश्व की आंखें भारत की ओर हैं। आप सोचेंगे किस लिए? आज से 84 वर्ष पहले जब निराकार परमपिता परमात्मा ने साकार मनुष्य तन का आधार लेकर के कन्या और माताओं के संगठन से या सहयोग से एक नारी संस्था जिसको कहा जाता था, उस समय ओम मंडली के नाम से प्रसिद्ध थी। उस संस्था का मुख्य उद्देश्य यही था कि हर मनुष्य आत्मा मैं कौन हूँ उसको समझे, मेरा कौन है उसको समझे और मेरे कर्तव्य को समझे। अब इन तीन चीज़ों को समझने के लिए हमें पूरा परिचय चाहिए और वह परिचय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दिया जाता है। और यहाँ का पहला मंत्र बोलो, पहला स्लोगन बोलो जो समाज तक गया, मिलने का, सम्मान करने का,
या अन्य आत्माओं के साथ बातचीत शुरू करने के लिए जो शब्द बोला जाता है वह है ओम शांति। इस ओम शांति शब्द के अंदर मेरा भी परिचय है, अर्थात मैं कौन हूँ, और उसमें सारा परिचय आ जाता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा धर्म अर्थात धारणा क्या है, और मेरा स्वरूप अर्थात रूप कैसा है। इन चारों का उत्तर एक ही है, शांति। बिंदु रूप होने के कारण उसमें भी द्वंद्व नहीं। बिंदु को देखो तो ऑटोमेटिकली शांति मिल जाती है। और इसके अलावा जब शांति शब्द का उच्चारण करो तो वायुमंडल में शांति के प्रकंपन पहुंच जाते हैं, और सुनने वालों को शांति शब्द सुनने से शांति का अनुभव होता है, और उस शांति के अंदर अपनत्व, स्नेह और कुछ ऐसी भावनाएं जिसके अंदर कुछ उच्च करने की क्षमता हो, वह भावना इस शब्द के अंदर है। तो ये ओम की ध्वनि से जब ये संस्था शुरू हुई और ओम शांति शब्द जब जन जन तक पहुंचने लगा, तो यह कार्य जो 14 वर्षों तक चला, जिसमें वहाँ के भाई बहनों ने स्वयं को शक्तिशाली बनाया, दृढ़ बनाया, अनुशासन युक्त बनाया, मर्यादा युक्त बनाया, और अन्य आत्माओं को भी जो अपने प्रति स्नेह है, सम्मान है, मर्यादा है, सुख है, अन्यों को भी वो देना शुरू करा। इस प्रकार का 14 वर्ष का ये लंबा सफर पूरा हुआ, और जब भारत का विभाजन हुआ तो उस विभाजन के पश्चात जब भारत में पहुंचे तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को ओम मंडी के नाम से ना जान करके प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से जानने लगे, जहाँ पर सभी धर्म, सभी जाति और सभी वर्ग के लोग आने लगे, सभी आयु के लोग आने लगे। शिक्षा है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं कौन है वो तो जान सकते हैं ना, मेरा कौन है वो तो जान सकते हैं ना। तो वह परिचय जैसे जैसे आकर के भारत में माउंट आबू में से धीरे धीरे अन्य शहरों की ओर बढ़ने लगा, तो लोगों के अंदर एक चेतना आई। वह चेतना क्या कि प्राचीन योग का नाम तो भारत में शुरू हुआ था, सुना हुआ था, और योग भी कितने प्रकार के योगों में विभाजित हो चुका था, और यहाँ तक कि योग सिखाने के लिए हमारे भारत के योगी बाहर भी जाने लगे थे, और बाहर से भी भारत में योग सीखने के लिए आने लगे थे। लेकिन तब वह योग केंद्र सिर्फ भाइयों के लिए था, नारियों के नहीं था, क्योंकि योग का फोकस मानसिक योग पर ना जा करके, कर्म योग पर ना जा करके हठ योग पर ज़्यादा हो गया, और वह योग का फोकस हो जाने के कारण से वो एक सीमा में बंध गया। परंतु इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने जो भारत का प्राचीन राजयोग गीता के अंदर वर्णन आता है, जिसके लिए स्वामी विवेकानंद ने अपनी संस्कृति को कायम रखने के लिए खुद भी इसका अभ्यास किया और अन्यों को भी इसका अभ्यास दिया, और राजयोग का व्यवहारिक रूप कि अन्य को भी सम्मान देना है और खुद को भी सम्मानित करके रखना है। खुद को सम्मानित करना माना अपनी भाषा को, अपने देश को और अपनी संस्कृति को। आप सब ने उनकी इस एक घटना का बोलो या वृत्तांत का बोलो वर्णन जरूर शुरू किया हो, सुना होगा, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो
भारत के नाम पर कहें या भारत की संस्कृति को लेकर के कहें या भारत के सहयोग से बोले, दोनों प्रकार के योग आज के दिन जो जितना जानता है करता है, औरों को कराता है और औरों तक पहुंचाता है। यूएनओ की ओर से ये दिन जब से घोषित हुआ है तब से जो भी देश हैं जैसा भी कर सकते हैं, जिस तरह के कृषि कर सकते हैं आज कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष ना दिखने वाला एक ऐसा वायरस जो विश्व में व्याप्त हो गया है, तो आज हम हजारों भाई बहनों को जमा करके सन्मुख में इस योग के कार्यक्रम को नहीं कर पा रहे, परंतु विश्व के हर भाई बहनों को बुद्धि रूपी आंख के सामने रख करके ये ई सेमिनार के द्वारा मैं समझती हूँ प्रकंपन जहाँ भी पहुँचेंगे लेकिन आवाज विश्व तक पहुँचेगी, क्योंकि विज्ञान के ऐसे साधन देखने के और सुनने के जो तैयार हो गए हैं, एक जगह पर बैठकर विश्व हमको देख सकता है और हम भी विश्व को देख सकते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस योग को 2 प्रकार के कार्य के लिए बनाता है जो आज की जरूरत है। हमने आज का विषय सुना पहले वक्ता के द्वारा भी, प्लस जो आज का कार्यक्रम है उनके द्वारा भी, जो मंच संचालन कर रहे हैं उनके द्वारा भी सुना। तो विषय तो आपने समझ लिया, लेकिन इस विषय में क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए जिससे सबको बेनिफिट हो सके। तो हठ योग तो आज की शारीरिक स्थितियों को देखते हुए हर आयु के व्यक्ति नहीं कर सकते, हर नारी नहीं कर सकती, बच्चे नहीं कर सकते, लेकिन रियल में जो राजयोग है वह राजयोग बच्चा, बूढ़ा, जवान, नारी, नर, रोगी, निरोगी, स्वस्थ, अस्वस्थ, पढ़ना हुआ, अनपढ़, जो कोई भी हो उसको कर सकते हैं। यह राजयोग 2 प्रकार का योग है। एक है जो मानसिक एक्सरसाइज सिखाता है और दूसरा है जो शारीरिक एक्सरसाइज भी सिखाता है। आप सोचेंगे शारीरिक एक्सरसाइज कैसे होती है? राजयोग तो मन की एक प्रक्रिया है, मन को हम परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, लेकिन शारीरिक एक्सरसाइज आंखों से दिखाई नहीं देती, परंतु अंदर अंदर इस राजयोग का अर्थात इस योग में किए गए संकल्पों का, इस योग में किए गए अनुभवों का और इस योग द्वारा दिए गए वाइब्रेशन का और इस योग द्वारा दी गई शिक्षा का जो आज समाज तक पहुंचता जा रहा है। तो इस एक के द्वारा दोनों कार्य हमारे सफल हो जाते हैं। शुद्धता है वस्तुओं की। जैसे आज हम क्या कहते हैं, भाई आप शाकाहारी बनो। क्यों शाकाहारी बनो? शाकाहारी थे, उसको छोड़ के तो मांसाहारी हो गए। अब उसकी रिजल्ट देख लिया कि ये वायरस शाकाहारी सब्जियों में नहीं, उसमें ज्यादा होता है। और कैसे क्यों ज्यादा होता है कि जो कोई व्यक्ति है मरी हुई किसी चीज को नहीं खाता, जो भी खाता हो, मछली खाता हो, जो भी खाता हो, वो जिंदा को मार के खाता है। तो जिस समय किसी जिंदा पर प्रहार होता है उसके अंदर के संकल्प कैसे होंगे? भय वाले होंगे, नेगेटिव होंगे, अपने को सेव करने के लिए होंगे, कमजोर होंगे। और वह अन्न जब हमारे अंदर जाएगा, हम कैसे होंगे? विचार करो, हम कैसे होंगे? तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले शुद्धता किस चीज की करनी पड़ेगी?
अन्न की करनी पड़ेगी, क्योंकि अन्न का मन के ऊपर में प्रभाव पड़ता है। यह हम अच्छी तरह से जानते हैं, प्रभाव पड़ता है नहीं। कोई व्यक्ति कितना भी गुस्सा करता हो या उसके ऊपर कोई कितना भी गुस्सा कर रहा हो, क्रोध कर रहा हो, कहेगा भाई देखो जो कुछ हुआ, थोड़ा शांति से 2 मिनट मुझे खाना तो खाने दो, या शांति से आधा घंटा सो जाने दो। कोई खुद अशांति मचाने वाला भी नहीं कहेगा हाँ मचाओ, मैं खाना खा लेता हूँ, मैं सो लेता हूँ। जो जितना ज्यादा शांति मचाता होगा ना, वो उतना ज्यादा शांति को खोजता होगा। ये नियम है। आप जो जिसको दोगे उसके पॉजिटिव आप, उसके विपरीत आप मांगोगे। तो शुद्धता हमें भोजन की चाहिए, जिससे हमें विचारों की निर्मलता मिलती है। निर्मल माना वह पवित्र विचार, वह श्रेष्ठ विचार, वो औरों को सुख देने के विचार, सहयोग देने के विचार। अगर हमारे में सबके प्रति हम सब एक हैं और एक ही पिता की संतान हैं, ये सृष्टि एक नाटक है। पूरे नाटक में कोई एक ही तो रोल नहीं होता और एक ही प्रकार का तो नहीं होता, अनेक रोल होते, अनेक प्रकार के होते हैं। हम दुख में भी हंसते हैं, सुख में भी हंसते हैं। क्यों? हमको मालूम है ये नाटक है। ठीक इसी प्रकार से किसने ये क्या कर दिया इससे कोई मतलब नहीं, वो सोचने का समय चला गया। जिसने जो करा, अभी मुझे क्या करना है? जो हो गया, जो वायरस आ गया, मुझे अपनी अंदर की शक्तिशाली संकल्प के द्वारा, अर्थात वायरस को वाइब्रेशन के द्वारा चेंज करना है। समझ में आई? तो वो चेंज करने के लिए हमें थोड़ा धैर्य चाहिए, थोड़ा सा समय भी चाहिए। लोग कहाँ पर जाकर के, टापू पर जाकर के, जंगलों में जाकर के कितनी तपस्या करते थे शांति से, और कहते थे हम अपने देश का कल्याण कर रहे हैं, हम प्रकृति का कल्याण कर रहे हैं, हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं। इतने कठिन तपस्या करके वो जी सकते थे, चल सकते थे और बड़े अपने में खुश रहते थे। अभी तो सिर्फ हमको इतना कहा जा रहा है, सच्चा अच्छा सोचो, अच्छा करो और अच्छा खाओ, अच्छा बोलो। अच्छा क्या है? शाकाहारी खाओ, उमंग उत्साह देने वाला बोलो और शांति का सोचो और करो क्या? जितना किसी को भी सहयोग दे सकते हो। किस प्रकार का सहयोग? सोशल डिस्टेंसिंग ये सिखाओ, मास्क ये पहनने का फायदा बताओ। और अभी हाथ से हाथ मिलाने का समय नहीं, लेकिन हाथ जोड़ करके नमस्कार करो। तो भारत विश्व गुरु इन्हीं 2-3 बातों के द्वारा था। इस पर मैं विवेकानंद का आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जब वो पहली बार विदेश में गया तो लोगों ने हेलो करके उनके साथ में हाथ मिलाने की कोशिश करी, तो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने नमस्कार किया और उन्होंने इंग्लिश में बोला और इन्होंने हिंदी में बोला नमस्ते। उन्होंने इंग्लिश में बोला गुड मॉर्निंग की जो भी कुछ बोला, इन्होंने हिंदी में बोला नमस्ते। और जब उन्होंने हिंदी में बोला, इन्होंने इंग्लिश में बोला। तो उसने पूछा, विदेशी ने, कि भाई जब हमने अपनी भाषा में बोला तब आपने हमारी भाषा में हमको रिप्लाई नहीं दिया, अपनी भाषा में रिप्लाई दिया, और जब हमने आपकी भाषा में बोला तो आप हमारी भाषा में बोले। तो कितना अच्छा जवाब स्वामी विवेकानंद ने दिया कि जब आपने अपनी भाषा में बोला, आप अपनी माँ को सम्मान दे रहे थे, तब मैंने भी अपनी माँ को सम्मान दिया। आपकी मातृभाषा इंग्लिश है, मेरी मातृभाषा हिंदी है। आप अपनी संस्कृति को सम्मान दे रहे थे। आपकी संस्कृति है शेक हैंड करने की, मेरी संस्कृति है नमस्कार करने की। लेकिन जब आपने हिंदी में बोला और नमस्कार किया तो आप मेरी माँ को सम्मान दे रहे थे, तो मैंने आपकी माँ को सम्मान दिया।
तो सम्मान को सम्मान है, सम्मान को सम्मान है। ठीक इसी प्रकार से सब आत्माएं हम एक ही पिता की संतान, एक ही स्थान से आए हैं, एक ही लक्ष्य से सृष्टि पर पार जाने के लिए आए हैं। जितना मुझे मेरे से प्यार है, इतना औरों से प्यार करना सीखो। प्यार करने का मतलब ये है शुभ वाइब्रेशन दो। और पवित्रता किस चीज की है? कर्म की पवित्रता। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करे जो हमारी कर्म इंद्रियों द्वारा औरों के लिए अकल्याण हो। आप सोचेंगे कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल है, अगर हम छींकते हैं या खांसते हैं, आज तो ये मास्क निकल आया, लेकिन मुंह पे रुमाल रखे या कपड़ा रखे करते थे ना, जो औरों को वायरस ना पहुंच जाए। ठीक इसी प्रकार से आज हम किसी के लिए भी बुरा ना सोचें। अगर किसी के प्रति कुछ भाव भी है तो उसको भूल जाओ, अभी वह समय नहीं है। अभी एक संकट है अदृश्य को अदृश्य से बदलने का, तब ये संकट बढ़ जाएगा। ये भावनाओं से पैदा हुआ है, आंखों से दिखाई नहीं देता। हमें भी मैं आत्मा जो आंखों से दिखाई नहीं देती, परमात्मा पिता आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन भावनाओं में उसको बसा देना है। और वह उसके मिलन के, उसके संबंध के, उसके सुख के, उसके प्रेम के संकल्प जो है वो औरों को देने का है। इसी का नाम है योगी बनो। योगी माना वह योग्यता जो अपनी इंद्रियों को जैसा चाहिए वैसा दिशा दे सके, वैसे चला सके। योगी माने वह योग्यता कि जो चाहे वो कर सके, अन्य के लिए, प्रकृति के लिए, विश्व के लिए। एक स्थान पर बैठ करके देखिए, सूरज आकाश में एक जगह है, सारे विश्व को रोशनी देता है। तो हम एक स्थान पर बैठ करके सारे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन जैसे रोशनी जितनी पावरफुल होती जाती है, उतने धरती के कीटाणु नष्ट होते जाते हैं। ऐसे हमारी ये भावना अन्य को वाइब्रेशन अच्छे देने की जितनी शक्तिशाली होती जाएगी, अपने अंदर आत्मिक प्रेम पैदा होता चला जाएगा। सारी भावनाओं से परे अभी एक ही लक्ष्य रहेगा, हम सब एक हैं और एक होकर के इसको समाप्त करने का है। जब यह भावना हमारी खत्म हो जाएगी तो कहा जाता है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे वैसा कर सकोगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा पाओगे वैसा दूसरों को दोगे। तो कुछ भी करके हम जिसके प्रति किया है उससे ना मांगे, उससे ना लेवे। उसने जो करने की, श्रेष्ठ करने की विधि जिस दाता ने हमको बताई है, परमात्मा पिता ने, निराकार शिव बाबा ने, वह सबका पिता है। उसने जो विधि बताई है, हमें उससे भी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली हमें देगा। क्या देगा? कर्म करने की ऐश्वर्य शक्ति देगा। और जितने हमारे संकल्प पॉजिटिव होते जाएंगे, उतने कम होते जाएंगे। और जितने हमारे कम संकल्प होंगे, उतना वायुमंडल शांत होता जाएगा। तो इस वायरस से पीड़ित आत्माओं को आथत मिलेगा, धैर्य मिलेगा, साहस मिलेगा, नई दिशा मिलेगी, जीने की इच्छा पैदा होगी। तो योगी और पवित्र बनने की परिभाषा तो दूसरी भी है, लेकिन आज उसको समझाने की जरूरत नहीं है। वह तो हम सब, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे सूफी संतों ने, हमारे कबीर रहीम, इन लोगों ने कितने कितने कुछ दोहे लिख के चले गए, कितने कुछ शिक्षाएं दे के चले गए, कितना कुछ समाज के लिए करके चले गए। जैसे आपको एक सूफी संत की छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। दिन के 12 बजे थे, एक व्यक्ति हाथ में लालटेन लेकर के, लालटेन जल रही थी, और आंखों के ऊपर ऐसे हाथ रख के
दिन के 12 बजे है, सूरज सिर के ऊपर है, रोशनी व्याप्त है, जैसे कोई चीज अंधेरे में कोई व्यक्ति ढूंढता हो ना, ऐसे ढूंढ रहा था। तो सामने से आए तो पूछे, भाई क्या ढूंढ रहे हो दिन के रोशनी में लालटेन लेकर के? तो बोला, उसको बिना देखे बोला, मैं इस दिन के प्रकाश में लालटेन लेकर के इंसानियत को ढूंढ रहा हूं। इंसान बहुत है दुनिया में, आज इंसानियत की जरूरत है। मानव बहुत है दुनिया में, मानवता की जरूरत है। मनुष्य बहुत है, मनुष्यता की जरूरत है। पशुत्व की ओर मनुष्य जा रहा है। उसका खान पान, बोल चाल, बदला लेने की भावनाएं, दुख देने की भावनाएं, ये सब जो भावना है अभी हम चेंज कर रहे हैं इस राज्य के द्वारा। तो आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रैक्टिकल, क्योंकि हम जितना भी थ्योरी पढ़ लें और प्रैक्टिकल नहीं तो कोई उस थ्योरी को राइट मानने वाला नहीं। इसीलिए ज्ञान चलता था। विज्ञान किस लिए आया? कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए नहीं। अभी जैसे ये लाइट चल रही है, आवाज आप सुन रहे हो वीडियो के द्वारा, ये सब दिखने वाली चीजें नहीं है, लेकिन प्रकंपन से आपके पास पहुंच रहे हैं ना। तो जब ये सब चीजें साइंस के साधनों से पहुंच सकते हैं, जिनको कुछ माध्यम चाहिए, कुछ साधन चाहिए, तार चाहिए, कैमरा चाहिए, कितने सब चीजें चाहिए, लेकिन राज्यों को कोई भी बाह्य साधन नहीं चाहिए, सिर्फ साधना चाहिए। वह साधना जो हूं वैसा देखूं, सोचूं, जो हूं वैसा देखूं, और जो मैं अपने आप से चाहती हूँ, अपने लिए चाहती हूँ, वैसा पहले औरों के लिए करूं। ठीक है? तो इसके लिए शारीरिक स्वच्छता, नहाइए, कपड़ा धुला हुआ पहनिए, हाथ को बार बार साबुन से धोइए और सैनिटाइज करिए। लेकिन बाहरी स्वच्छता के साथ ज्यादा काम करती है मानसिक स्वच्छता, अर्थात मुझे स्वयं के लिए भी अच्छा सोचना। अच्छा सोचना माना मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं संपन्न हूँ, अन्य आत्मा भी स्वस्थ हो रही है, सुखी हो रही है। इससे जो वायरस है, इसके कष्ट से वो मुक्त हो रही है। ये आया है ना, ये था ना, ये रहेगा। जैसे जो आया है वैसे वो चला जाएगा, ये सदा याद रखो। लेकिन हम और आप थे, हैं और फिर भी रहेंगे। सिर्फ क्या चेंज होगा? वस्त्र परिवर्तन होगा, पार्ट परिवर्तन होगा। हम किसी भी वस्त्र को पहने, किसी भी पार्ट को ब्रेक करें, लेकिन मैं तो हूं अदृश्य शक्ति ना। वह एक वायरस है, यह एक वाइब्रेशन है, एक स्पंदन है जिसको हम महसूस करते हैं, एक चेतना है जो हमें तरंग देती है, जो हमें जीवन देती है। और ये भावनाएं, भोजन तो हो, मेडिसिन तो हो, जो कुछ भी होने दो, लेकिन जब तक यह भावनाएं नहीं होंगी औरों को देने की, औरों से लेने की नहीं, औरों को देने की, लेकिन लेने का स्रोत है परमात्मा, वो दे रहा है और हमें औरों को देना ही है। जैसे पावर हाउस से हम कितनी बैटरी चार्ज करते हैं, वो बैटरी कितनों को प्रकाश देती है, कितनों को ठंडा देती है, कितनों को गर्म देती है, कितनों को जल देती है, कितनों को जीवन देती है, कितनों को देती है। लेकिन लेती तो जिनको दे रही है उनसे नहीं लेती है ना। लेने का स्रोत उसका पावर हाउस अलग है। ठीक है, लेने का स्रोत हमारा परमात्मा है, देने का स्रोत हम हैं। जहां तक दे सकते हैं, जितना दे सकते हैं, एक बीज बोने से कितने फल पैदा होते हैं वो हमको प्राप्त होते हैं। एक संकल्प से अनेकों दुआएं हमको ही मिलेंगी, वो हमको ही रिटर्न आती हैं। तो याद रखें, अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा चलो। क्या है? जिसमें स्वयं और अन्य का हित समाया हो उसको अच्छा कहते हैं। ठीक है? दूसरा,
योगी और पवित्र की परिभाषा सिर्फ इतनी ही नहीं है कि हम वस्त्र परिवर्तन करके गेरुआ वस्त्र पहन करके जंगल में चले गए और हमारा जीवन सात्विक अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। परिवार ही नहीं है, अपवित्रता आएगी कहाँ से? व्यक्ति ही नहीं है हमारे सामने, हिंसा आएगी कहाँ से? वस्तु नहीं है हमारे सामने, लोभ या लालसा आएगी कहाँ से? आकर्षण आएगा कहाँ से? लेकिन रियल योग की परिभाषा सब होते हुए भी, लेकिन मुझे मेरा बुद्धि योग, मेरी इच्छा, मेरी भावना, मेरा कार्य औरों के कल्याण के लिए ऑटोमेटिकली मुझे पदम गुना उसकी जगह भरपूर होती जा रही हूँ। तो आज ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हम सब मना रहे हैं, प्रतिवर्ष 21 जून को ये आता है, सारे विश्व में मनाया जा रहा है। भले आज हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम संगठित हैं। इस सेमिनार के द्वारा हम एक दूसरे को जो दिशा दे रहे हैं, जो डायरेक्शन दे रहे हैं, वो बड़ी सहयोग की चीज है। हम भले ही शरीरों से दूर दूर हैं, लेकिन आंखों से तो देख पा रहे हैं, वाइब्रेशन को तो ले पा रहे हैं, हार्ट टचिंग तो हो रहा है ना। और इससे क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी भी बढ़ रही है, और क्या हो रहा है, अन्य की भी एनर्जी बढ़ रही है। तो ये विश्व कल्याण का कार्य है जो आज कर रहे हैं। चल कारण कुछ भी बना हो, किसी के कारण भी बना हो, लेकिन हमें इसे निरंतर रखना होगा। इससे हमारी एनर्जी तो बढ़ती ही है, औरों को मिलती है। आप कोई भी चीज जिसको जितना देंगे उतना आपको प्राप्त होगा। प्रेम देंगे प्रेम मिलेगा, सम्मान देंगे सम्मान मिलेगा, क्षमा देंगे क्षमा मिलेगी, सहयोग देंगे सहयोग मिलेगा। आप देखे तो देखिए, आप देखे तो देखिए, लेकिन देने के लिए हमें क्या चाहिए, दृढ़ता चाहिए, और उस दृढ़ता के लिए एकाग्रता चाहिए। और ये एकाग्रता राजयोग से हमें प्राप्त होती है, और उसके लिए हमें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, वस्त्र परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। घर गृहस्थ में रहते हुए विचारों को परिवर्तन करना है, तो व्यवहार ऑटोमेटिकल परिवर्तन हो जाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, अर्थात ऐसे योग्य बनो जो शुद्ध अर्थात पवित्र वाइब्रेशन हम औरों को दे। योग्यता वह जो हम इन कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकें, और पवित्रता वह जो विचारों के अंदर शुद्धता और अन्य देनों की भावना हो। बाकी तो ब्रह्मचर्य का पालन करना और तपस्या करना वह एक दूसरी चीज है, वह एक दूसरी चीज है। आज लाखों भाई बहने घर गृहस्थ में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करके शुद्ध भोजन करके औरों के कल्याण की चिंता कर रहे हैं। आप देखिए, जिस समय विश्व के ऊपर या देश के ऊपर, विश्व की बात छोड़ो, कोई संकट आता है तो हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी लगानी। उस इमरजेंसी में क्या होता है, हमारा मौलिक अधिकार चले जाते हैं, ठीक है नहीं। संविधान ने हमें रोटी कपड़ा और मकान दिया है, लेकिन उस समय हम डिमांड नहीं कर सकते, जो मिला जैसे मिला जिस रीति से मिला। आज विश्व के ऊपर चारित्रिक संकट आया है, आज विश्व के ऊपर में शारीरिक संकट आया है, अर्थात रोग का संकट आया है। हमें मिलकर के इसके साथ युद्ध करना होगा, हमें मिलकर के इसका सामना करना होगा। इसलिए हमें आज एक ही इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर एक ही संकल्प करना होगा, हम सब एक हैं, एक के हैं, नेक रहेंगे और एक के होकर के चलेंगे। लेकिन अच्छा सोचेंगे, अच्छा सोच देंगे, औरों को अच्छा करेंगे, अच्छा औरों को करना सिखाएंगे। किसी के प्रति भी हमारी बदला लेने की भावना ना हो, लेकिन खुद को बदल करके, क्षमा से बड़ा शक्ति या गुण नहीं, ठीक नहीं। शांति से बड़ा कोई साहस नहीं। भाई क्रोध करने वाला शक्तिशाली है कि चुप रहने वाला शक्तिशाली, आप निर्णय करो अपने आप। चुप रहने वाला चुप ही रहेगा,
वो कभी भी मुस्कुरा रहा है, कभी भी मुस्कुरा रहा है। शक्ति वह जो रह जाए परमानेंट, और कमजोरी वह क्रोध कितनी जोर से आता है, फिर कैसे धीरे 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 आखिर समाप्त हो जाता है। तो जो है परमानेंट है वही शक्तिशाली है, जो आया चला जाएगा वो क्या शक्ति है। तो कभी नहीं सोचना क्रोध वाला शक्तिशाली है, चुप रहने वाला कमजोर है, नहीं। सबसे शक्तिशाली वह है जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में शांत रह करके शांति का दान ही दे, शांति का सहयोगी दे। तो आज के दिन हम सब एक संकल्प लेंगे, सदा हम स्वयं को आत्मा समझ करके, और मैं आत्मा ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद स्वरूप हूँ। हर आत्मा कोई सी भी हो, किसी भी शरीर में हो, वो गाड़ी किसी भी कंपनी की हो, ड्राइवर तो ड्राइवर ही है ना। तो मैं कुछ भी हूँ, लेकिन ये सातों चीज सबको चाहिए। मुझे अपनी इस स्थिति में रहना है, औरों को भी यही देना है। तो ये अदृश्य जो वायरस हमें नचा रहा है, भयभीत कर रहा है, हम इस अदृश्य वायरस को सदा के लिए समाप्त करेंगे। योगी और पवित्र बनने से हम स्वस्थ और निश्चिंत हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। चाहते हो ना स्वस्थ और निश्चिंत रहना? चिंता कितनी बढ़ी हुई है, अस्वस्थता कितनी बढ़ गई है। तो वह योग्यता जो हम अपने संकल्पों पर विजय प्राप्त कर सके, बोल और कर्म पर, और वह पवित्रता जो हमारे भोजन में, हमारे वाइब्रेशन में, हमारे व्यवहार में और हमारी शारीरिक प्रक्रिया के अंदर में, ये दोनों चीज हो जाने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली हम क्या हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। सबका भला हो, सब सुख पाए। ओम शांति। मंजू दीदी जी, आपको बहुत बहुत थैंक्स। आप सभी को स्पष्ट रूप से आज का टॉपिक का मांग सभी के सामने प्रस्तुत किया, जस्टिफाई भी किया, और आपकी तेजस्वी भाषण से सभी को निश्चित रूप से शक्ति और राहत मिली होगी, और सभी के मन बुद्धि को आप, मैं समझती हूँ, निश्चित रूप से लाइट किया होगा। फिर से आपको बहुत बहुत थैंक्स। आज मेडिकल प्रोफेशन से डॉक्टर प्रोफेसर भारती मिश्र, गायनोकोलॉजिस्ट, हमारे सामने आ रहे हैं। आप 1990 से ब्रह्मा कुमारी से परिचित हैं। ये बड़ी गर्व की बात है कि आप माउंट आबू भी विजिट किए हैं। Om Shanti. First of all, I pray Shiv Baba to give us a healthy life. Today in the era of COVID-19, all are having a fearful life not to be affected by COVID. And very soon we are going to celebrate the Yoga Day. What is yoga? Yoga is omnipresent and can be practiced inside the residence, outside, garden or anywhere. It not only gives physical fitness but gives lot of psychological benefit to anybody. So in the female life cycle is very much affected by stress factor. Starting from childhood, menstrual life, your pregnancy life, then midlife and then menopause. So this yoga, when you practice, in a case of adolescent girls nowadays suffer a lot because of the food fat habits and stress factor. A disease called polycystic ovarian disease
or PCOD. The first treatment is exercise and yoga. Why? Because not only it gives you physical fitness, changes your body milieu, but the stress of life is decreased. So since they're there, and most of the patients, they become alright once they practice a regular yoga. Then comes the life when the lady is married and they're interested to conceive without any cause. So many patients they do conceive or have a baby. That's called unexplained infertility. So during their treatment, we gynecologists always tell them to practice yoga or lifestyle modification exercise, because if the stress factor is gone, then the life there will be ovulation and she can conceive. As we all know, the female life is governed by hypothalamus, then pituitary, then ovarian and uterine axis. These cycles is being influenced by a cortex, cerebral cortex. The cerebral cortex is again influenced by the environment and stress factor. So this stress factor has to go, and if they are gone by yoga the best way, then the cycle of the female cycle of the menstrual cycle become normal, the pain during periods will be normal, and also the female can conceive if she is married and she is interested to have a baby. So that is the importance of hypothalamus, pituitary, uterine axis, cortex, which is influenced by the stress factor. Then comes the midlife. In the middle of the life, there are so many diseases, and few diseases are hereditary or chromosomal or genetic, and few are environmental. We cannot change the genetic, but we can definitely decrease the disease incidence or the severity of the disease by modifying lifestyle. The best way is yoga. In the middle of the life, that is called midlife, 50 years. When you are rowing a boat in the middle of the sea, that's called midlife. In that phase also, we have to be very, very calculative regarding our diet, exercise, yoga, and also we should not take up mental strain. Office, outside, home stress, everything is mounting, but you have to stress free. Yoga is not giving only physical fitness, also lot of mental fitness, and all exercise they liberate antioxidant, which is the need of the day, and they decrease the diabetes, hypertension, heart disease, coronary disease, and also if you do yoga, your mobility will be increased. You will not have arthritis, bending, and the osteoporosis, which will come after menopause, will be less, because you are always doing yoga and exercise. Then comes your menopause, the last part of life. Nowadays, every female is having 1/3 of her life in the menopausal age, and this menopausal age should be bliss, should be happiness. And we know a lot, we have learned a lot, Raj Yoga and every yoga in Om Shanti conferences and everywhere it has been taught to us. And that who are I, what is Atma, what is Paratma, and why we are born, what is the need of the life, how to do good, how to be good and do good to the people. And that is yoga also you can tell, and a lot of mental peace, tranquility also it gives, and the life become a bliss because you practice yoga in menopausal life. Lot of people, they do have depression. Emptiness syndrome is one of the cause in later life, where all children are gone to different places to work, nobody with you, you are alone, and there may be financial problem or not, but in that time you require more, that is yoga will be your friend. So dear friends, if you practice yoga, what I am telling about female,
throughout your life, from childhood, adolescence, married life, midlife, and latter life, then it will be bed of roses. Never you will find stressful life. Because in modern society, more than half of the diseases are stress linked. And physical fitness, what is required in the era of COVID, what has been told by different scientists, doctors, international doctors, and everybody, that you do exercise and yoga. It delivers a lot of antioxidant. It can prevent the COVID, and if it is affected also, all are not having the same fate. You will have a better prognosis if you are practicing yoga and everything. So that is the need of the day. Before ending with a folded hand, I am requesting everybody to keep the social distancing, to use mask, and to do hand washing only 22 seconds whenever you are going out or coming inside the house, and also don't go out unless very much required. Let us beat the coronavirus and let us be intelligent enough for that reason. Last of all, Sarve Sukhina Bhavantu, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschituka. Om Shanti Shanti. Thanks, madam. Your approach is very practical, marvelous. Next, एज ए एजुकेशनिस्ट हमारे सामने परम्परा यूनिवर्सिटी की ओर से आ रहे हैं प्रोफेसर प्रकाश चंद्र मिश्र। आप कॉमर्स डिपार्टमेंट के एचओडी और डीन के रूप में सेवारत थे और एमरिटस प्रोफेसर के रूप में आप 2 साल सेवा दिए हैं। All over the world, people are celebrating this. On the auspicious day, Prajapita Brahma Kumaris Ishwarya Vishwavidyalaya, Brahmapura Upahara Retreat Center, Barampur 10, is organizing an e-seminar. Rajyogini Manjudidi and Mala Bhauni has taken all the pains to organize it in Barampur. In the present context, when the entire world is badly affected by COVID-19 corona and people and countries are in a fix, the best solution is to develop the strength of mind to face such critical situation. For developing strength of mind, practice of Raja Yoga will be the best solution. This e-seminar will awaken people and provide a strength and a strong message and consciousness to be strong, united to fight against this coronavirus. All of we know that yoga is the medium through which our Atma is connected itself with the Supreme Soul, the Paramatma. Raj Yoga is the king of all yogas, which helps to enrich our knowledge regarding the power of Paramatma, to smoothen the process of connectivity of Atman with that of Paramatman. A ground is to be created basing upon certain human values like non-violence, truthfulness, simplicity, and service mentality. Now, Prajapita Brahma Kumaris Ishwarya Vishwavidyalaya has undertaken the task of creating those human values among the people through its thousands of Brahma Kumaris and Kumaras. A perceptual change has come in our society through the dedicated works of Brahma Kumaris. We people must understand and practice Raja Yoga and lead a natural and simple life and should not be panicked for the coronavirus and face it
in an usual manner by following the guidelines of the government given to us at different points of time for the greater interest of the humanity as a whole. I wish all success for the seminar and congratulate Rajyogini Manju Didi and Mala Didi for the timely effort. Beautiful. Your concept regarding Raj Yoga is very clear and clear. Thanks, brother. वर्तमान हम परमात्मा शक्तियों और वरदानों को योग के माध्यम से कैसे अनुभूति करेंगे, उसका प्रैक्टिस कराने के लिए हमारे सामने आ रहे हैं राजयोगिनी बीके माला दीदी जी, डायरेक्टर प्रभुपाद रिट्रीट सेंटर। माला दीदी जी, आप 1983 से स्पिरिचुअल लाइफ लीड कर रहे हैं और अपना लेक्चरशिप का पोस्ट आप त्याग कर 1986 से आप खुद को इस विश्व कल्याण के अर्थ खुद को समर्पित किया है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीएचडी भी किए हैं। आप अच्छा मैनेजमेंट कोर्स भी कराते हैं और योग सिखाने में आप सिद्धहस्त है। आपका योग का कमेंट्री सुनने के लिए देश विदेश के भाई बहन विशेष रुचि रखते हैं। हम सभी का यही आग्रह है कि आप अपना अनुभवों के आधार से सभी को योग का गहन अनुभूति कराएंगे। राजयोगिनी सिस्टर बीके माला दीदी जी। ओम शांति, शुभ संध्या। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अंतर्गत इस सेमिनार में मुझे योग राजयोग का अभ्यास कराने का पाठ मिला हुआ है। ये बेहद खुशी की बात है और टॉपिक भी है बी होली बी राजयोगी। पवित्रता और योग दोनों ओतप्रोत हैं। मन बुद्धि पवित्र हो, सोच विचार स्वच्छ हो, निर्मल हो, तो योग शब्द जिसमें एकाग्रता चाहिए, दृढ़ता चाहिए, आग्रह चाहिए, दोनों सक्सेस हो सकता है। और योग क्या है? योग हम सभी जानते हैं। योग एक पवित्र शब्द है जिसमें आत्मा अगर संपूर्ण पवित्र समर्पण बुद्धि है तो परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ जो संयोग है, मिलन है, आनंद है, उसमें एकाग्रता में समीपता का अनुभव कर सके। जीवन में गुण हो, मानविकता हो, ऑनेस्टी हो, सच्चाई हो, उसका बड़ा प्राधान्य है। और राजयोग क्या है? राजयोग में स्वयं को पहचानना ये बहुत जरूरी है। स्वयं हम ऐसे भी कहते हैं ह्यूमन बीइंग, अर्थात ह्यूमस माना मिट्टी से जन्मा शरीर और बीइंग लिविंग एंटिटी है जो चैतन्य है। तो एक जड़ नश्वर शरीर में जब चैतन्य आत्मा का, प्राण का प्रवेश होता है, उपदेश होता है, तो सुंदर शरीर तो बन जाता है, जीव आत्मा कहलाते हैं। लेकिन उसको लेके जो लाइफ लीड करते हैं उसमें हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए,
जो सब कुछ बंद के कारण साधारण मानव आहार में, रहने में, सब में उनको अभाव हो रहा है, उनके लिए उस मनुष्य आत्माओं के अंदर दान करने का, सहयोग देने का, ये जो भाव क्रिएट हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? जब मनुष्य के अंदर वैराग्य भाव आता है कि एक वायरस ने सबको बंद कर दिया और सब भगवान के संतान है, इतना भी सोच नहीं आने से भी सब मेरे भाई है, सब ठीक रहे, स्वस्थ रहे, निर्भय रहे, और जब तक जीवन है जिंदा रहे। ये भाव जो क्रिएट हो रहा है, आप जानने से बेहद खुशी में आएंगे कि ये आत्मा का, स्वयं का अपना धर्म है, गुण है, जो हम व्यस्तता के दुनिया में, जो हम दूसरे रीति में जीने का, धन कमाना है, आगे बढ़ना है, साइंस को यूज करना है, एंजॉय करना है, लाइफ के पीछे दौड़ रहे थे, अब हम स्थिर चित्त हो गए, कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कुछ करने को सोच रहे हैं। इसीलिए अभी ये हमारा साइलेंस का जो पावर है, आत्मा के अंदर जो ये शांति का स्वधर्म है, उससे हमारे अंदर विवेक क्रिएट हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। समय के अनुसार आज ये राजयोग को स्पष्ट करने का समय आ गया है, लेकिन ये 1936 मसीहा से ये चल रहा है। सबको अब जबकि अपने अंदर से निस्वार्थ शक्ति दान करने का, गुण दान करने का, धन दान करने का, अपने विचारों को शेयर करने का टाइम आ चुका है। तो हम क्यों ना ये सब अच्छाई को परमात्मा के ऊपर संपूर्ण समर्पण करें, जिससे इसका रूप अविनाशी होकर के वरदान जैसे हमारे पास आए। चलिए कुछ समय के लिए हम राजयोग का अभ्यास करते हैं। शब्द द्वारा तो हमने अभी तक जो सुन रहे थे उसको मन में स्थान दे रहे थे, बुद्धि द्वारा निर्णय ले रहे थे। अभी हम अपने मन बुद्धि को शांत करें। कुछ समय के लिए ये भौतिक जगत से, बाह्य चिंतन से अपने को अंदर अंतर्मुखी बनाए। साइलेंस की गहन गुफा में आत्मा जो प्रकृति के बीच ज्योति बिंदु स्वरूप है, एक प्रकाश का पुंज है, एक शक्ति स्वरूप है, उसको हम अनुभव करें। इसलिए हम सभी का आंखें खुले हो, जो हम अपने संकल्प शक्ति को रियल रख सके, पॉजिटिव रख सके और बेनिफिशियल बना सके। आइए साइलेंस को अपना निजी धर्म बनाए,
अपने आप में स्पष्ट हो जाए। भ्रुकुटी के बीच मन बुद्धि के संकल्प शक्ति को एकाग्र करे, अनुभव करे वो दिव्य ज्योति को जो है सूक्ष्म, दिखाई नहीं देता, लेकिन साइलेंस में रह करके अपने अंदर समय के अनुसार गुणों का प्रारंभ किया है। रियलाइजेशन को बढ़ाया है। स्वयं को देखे। आत्मा स्वयं के स्वधर्म में टिक जाए, शांत हो, शीतल हो, अपने आप में झांके। अपने आप आवाज निकलता है, मैं आत्मा शांति प्रिय हूं। शांति में जो शीतलता है, मुझे वो अनुभव हो रहा है। अपने आप को देख में हर्ष हो रही हूँ कि अपने आप में, अपने अंदर में कितना हल्कापन है, खुशी है। समझ सकती हूँ मैं, परमात्मा पिता ने मुझे इस सृष्टि रंगमंच पर क्यों भेजा है? गुणों का दान करने के लिए, शक्तियों का दान करने के लिए। मैं आत्मा समझ रही हूँ, मेरा जीवन अपने आप स्वयं में ऐसे शांति में भरपूर रखूं, प्रेम में गदगद रहूं, सबको समझने के लिए मेरे पास वो दिव्य नेत्र, आई ऑफ विजडम हो सदा। मैं खुद भी आनंदित रहूं, अन्य का सुख के लिए मेरा डेडिकेशन हो, निस्वार्थ प्रेम हो। अपने आप मेरी बुद्धि ये सब का सागर परमात्मा की ओर कंसंट्रेट हो रही है। परमात्मा पिता अब कितना मेरे लिए हितैषी हो, मुझे समय दिया, चांस दिया कि स्वयं को अनुभव करते हुए
आपके पास मेरा मन बुद्धि अर्पित रहे, समर्पित रहे, जो आपकी शक्ति से मैं आत्मा गुण और शक्तियों का विकास कर सकूं। सदा निर्भीक हो, सदा सबके लिए भाव विभोर हो, शुभ चिंतक हो। इस लाइफ में सबका कल्याण करती चलो। शिव बाबा, आपका साथ कभी न छोड़ो, आपके पास सदा रहूं। मेरी स्मृति, मेरी बुद्धि, मन के संकल्प सदा आपके साथ रहा। आप भी सबके लिए कल्याणकारी हो। आज मेरे आत्मा भाई जो पीड़ित है, जो ग्रसित है, और जो भी घर में बंद रहकर अब सोच रहे हैं कैसे करूं, क्या करूं, उनको मेरी ये दिल से सूक्ष्म से अपना स्वयं का ताकत, शक्ति, प्रेम, सद्भावना, सहयोग सदा पहुंचे, स्पर्श करे सबको। सभी मेरे आत्मा भाई आपके ओर आग्रही होकर आपसे डायरेक्ट इस राजयोग का लाभ ले। ये मेरी आज के दिवस में सबके लिए शुभ भावना और शुभकामना है। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स राजयोगिनी माला दीदी जी। आप अपना अनुभवों से सभी को गहन शांति और अतीन्द्रिय सुख का निश्चित रूप से अनुभव कराया, और सभी ये सुंदर अनुभव को बार बार स्मृति में लाएंगे, और सभी का निश्चित रूप से दिल होगा कि ये राजयोगा बार बार प्रैक्टिस करेंगे। दिल होती है आपको बार बार धन्यवाद देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। अभी हमारे सामने एक ऐसे अनुभवी रत्न है जो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करके 10 साल से स्टाफ नर्स के रूप में एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज में सर्विस कर रही है। वो राजयोग को कैसे अपने जीवन में और अपने कर्म क्षेत्र में इम्प्लीमेंट किया है, अपने अनुभव से हम सुनेंगे। सिस्टर विष्णुप्रिया महापात्र। ओम शांति। आज के इस कोविड-19 के जो बीमारी आई है और जो इस परीक्षा के समय चल रहा है, इस समय में मुझे अपनी कुछ अनुभूति शेयर करने के लिए मौका मिल रहा है। इसलिए मैं दिल से मंजू दीदी जी को और माला दीदी जी को शुक्रिया अदा करती हूँ।
आप सब तो जानते हैं और महसूस भी करते हैं, हम सब अभी घरों में लॉक है, लेकिन जी रहे हैं डर से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से और डिप्रेशन में भी कईयों जा रहे हैं। लेकिन इस समय मैं अपने को भाग्यशाली समझती हूँ कि भगवान ने मुझे चुना है और साथ में ड्यूटी निभाने के लिए मौका दे रहा है। इस ड्यूटी के माध्यम से मैं मरीजों की सेवा कर सकूं। सब तो पैसे कमाते हैं, लेकिन नसीब वाले दुआएं कमाते हैं। हम अपना अनुभूति से यही कहना चाहती हूँ कि मैं पहले से इस समय में ज्यादा स्ट्रांग हो रही हूँ और साथ में पॉजिटिविटी के साथ पेशेंट को सेवा भी दे रही हूँ। ये तो ब्रह्मा कुमारी प्रदत्त राजयोग मेडिटेशन से मैं सीखी हूँ। आज से 10 साल पहले जब मैंने नर्सिंग पढ़ाई समाप्त किया, फिर स्टाफ नर्स के रूप में मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किए, तब मुझे यही परमात्मा का सत्य ज्ञान और सहज राजयोग मेडिटेशन प्राप्त हुआ और इसको जीवन में भी इम्प्लीमेंट किया मैंने। जब मैं ड्यूटी के लिए निकल रही हूँ घर से, 2-4 संकल्प प्रैक्टिस करके जाती हूँ। पहला तो मेरे साथ कौन है? मेरे साथ स्वयं परमपिता परमात्मा है, जो कि सुप्रीम सर्जन है। उनकी हाथ मेरे सिर के ऊपर है, भला मेरे क्या हो सकता है। दूसरा, परमात्मा की कवच मेरे साथ है, इसीलिए मैं पूरी तरह सेफ हूँ। तीसरा, मैं जब इसी संकल्प के साथ मरीजों के पास जाती हूँ, जो भी सब मरीजों हैं सब ठीक हो रहा है, सब भी इस परमात्मा की किरणें से सुरक्षित है। जब इस पॉजिटिव संकल्प लेकर मरीजों के पास जाती हूँ, तब इसकी प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ता है और उसके मन से जो भय है, जो तनाव है, जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, ऐसा धीरे धीरे दूर हो रहा है। इसीलिए मैं हमारी तरह सब भाई बहन को, यानी जो हॉस्पिटल में सब ड्यूटी कर रहे हैं और जो सब नर्सिंग स्टाफ है और बाहर में जो सब ड्यूटी कर रहे हैं, सबको तो यही कहना चाहूंगी, अवश्य राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, ताकि इस कोरोना जैसे बीमारी के साथ लड़ने के लिए हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग माइंड पावर आएगा। जैसे कहावत है, ए हेल्दी माइंड कैन बिल्ड ए हेल्दी वर्ल्ड। अगर हम सबका मनोबल इतनी स्ट्रांग होगा तो एक कोरोना जैसे वायरस अवश्य ही दूर हो जाएगा। आइए हम सब एक संकल्प के साथ एक परमात्मा की संतान के नाते उनको याद करें और अपने को सुरक्षित रखें और इस विश्व को या सृष्टि को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद। ओम शांति। Many thanks, sister, for sharing your nice experience of your sympathetic and dedicated service towards the patients. Now I extend my hearty greetings to all our guest speakers, organizer and online audience for participating in the e-seminar and making it a grand success. Now I want to share an important message, that is Prabhupada Retreat Center Barampur 10 is going to organizing a online course, that is the Art of Joyful Life, starts from 24th June 2020 at 5 p.m. To watch this program, you can subscribe our channel PURC BAM, and so that you can intimate for the upcoming events of Brahma Kumaris. Now we will depart with a deep experience of bliss after a beautiful meditation song. Om Shanti.
खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा।